गोंयान कोळसो म्हणजे हे एक मोठी आंदोलन आमी गोंयभर पळयली आनी ह्या आंदोलनाच्या फाटल्यान जो कोळसो आसा तो कोळसो गोंयान कसो कमी जातलो हेचेर खुबशी चर्चा विधानसभेन सुद्दां जाता ती पळयली जाल्यार आयज आमी हांगा पावलेले आसा एमपीटीन म्हणजे मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी MPA जे आतां जालां थंय हांगा आमी आयज पावलेले आसा आनी जे खरे कोळसो हांगा कितलो आसा ते दाखोवपाक आनीक आमी कांय प्रश्न हांगासर जे अधिकारी आसात तांकांय विचारलेले आसात की हांगा कसो कोळसो जो आसा तो तुमचो कसो येता आनीक कितें बसून हेजेर जो परिणाम आसा तो वास्कोकारांक कसो जाता हे सुद्दां आमी तुमचे मुखार ह्या कार्यावळींतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न करतले आनीक काही जे हांगासले अधिकारी आसात त्या अधिकाऱ्या कडेन आमी उलयल्ले आसात आनीक तेंचे कडेन तेंचे विचार जे आसात ते आमी तुमचे मुखार हाडटले. So today, as of now, in India, I think 73% of the power generation is from coal. So this 73%, so today if we, in 24 hours, the power supply in our house, 73%, that is 18% of the power supply in a day is coming out of coal. So this is one thing we need to understand. Even South Africa is 83%. Even the most developed country, US, it is 19%. Japan, it is around 30%. So when we speak about reducing the fossil fuel, etc., yes, we have to reduce. But the first question is whether a country should use its reserve for its development. When we have an Amrit Kal vision of 2047, the government, the country has also taken a stand. Yes, we need to use our coal for the power generation. Then the question comes in, why are we importing coal? We are importing coal because our country's reserve is mostly non-coking coal, which is low-grade, thermal coal. Our requirement is for steel, etc. Our requirement is coking coal and high-grade thermal coal. Where is this coking coal going? The coking coal is being used for steel manufacturing. The steel gets exported, steel gets consumed in the domestic market. Then why are we importing high-grade thermal coal? Because we have only low-grade thermal coal in the country. We need to mix the high-grade thermal coal and the low-grade thermal coal for power generation. So if you ask me how many power plants are in the country which is based on coal, I think over 200. There are over 200 power plants in the country depending on coal, producing 73% of the power which we require.
So when you ask, do we need coal or not? So that is the thing. It is not that port wants to import coal. It is the country needs coal today because 73% of the power generation is from coal. Okay, so does the But then let me complete. Should we reduce it? Yes, we should try to reduce it. Second, as you said, that because it is required, then what can we do? Reduce the impact of the pollution to the maximum possible level by bringing in the best technology. And today, when you go to the port, you can see our port is one of the major ports in the country which has state-of-the-art kind of a piped conveyor belts, on the automatic silo loading, everything, entire technology to reduce the coal pollution to the barest possible, thing. That is. so the MPT plans to reduce the coal handling or something? Is there any plans to increase some? Again, what is the port's role in the? We are at the center of the logistics chain, the trade. What the country requires will be imported. What the country is producing will be, which is required by other countries, will be exported. Actually, the port has no say on reduce karna hai, nahi karna hai. It is the country's requirement. I would like to personally export jasmine flowers, but then, but then it may not be kind of possible because I don't decide. Deputy Chairman, none of us decide what is to be exported and imported. It is the trade which decides. We as a port have to facilitate that export-import process. If all of us, if we together decide we need only 6 hours of power supply in our house, I think we can all decide and then we can kind of. Otherwise, we consciously try to improve our renewable energy sources. Like we are coming up with a 3 megawatt solar power plant, which will be the single largest power plant in the state. जेन्ना आमी JSWच्या अधिकाऱ्या कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां एक कळ्ळें की हे जे म्हाजे फाटल्यान जे स्ट्रक्चर दिसता ते स्ट्रक्चर खंय तरी आतां डोम तयार केल्लो आसा आनी हो जो डोम आसा जो कोल हांगा जमनीर हाडून दवरलेलो आसा तो डोम पयलीं फक्त तेजेर प्लास्टीकचे म्हणटात ते शीट्स घालताले आनी आतां तेणी मेटलचो एक डोम तयार केल्लो आसा जेणे करून हे दवरलेले कोलाचें प्रदूशण जावपाक जायना. जो डोम बोल रहे हैं वो यही है. ये जो डोम है अब इसकी आप देखिए ये चौड़ाई जो है इसकी 135 मीटर है. इसकी ब्रेथ इज़ 135 मीटर्स, इसकी हाइट इज़ 45 मीटर्स एंड इसकी लेंथ इज़ अबाउट 350 मीटर्स, 320 मीटर्स. टोटली ये हो जाता है 43,000 स्क्वायर मीटर्स. आई डोंट थिंक गोवा में इससे बड़ा कार्गो रखने का कोई भी या स्टोर होगा. दिस इज़ द बिगेस्ट स्टोर एंड बिकॉज ये इतनी पास है सी के इसको बनाने के लिए मतलब लागत भी काफ़ी ज़्यादा आई है इसलिए बिकॉज पाइलिंग काफ़ी हेवी है, विंड्स ज़्यादा तेज चलते टोटल कैपेसिटी क्या रहेगी? सॉरी टोटल कैपेसिटी स्टोरिंग कार्गो रखने की इसमें कार्गो 2 लाख टन से 2,20,000 टन तक आ जाएगा. सर बहुत सालों से यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता है. सो क्या क्या आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हो या आपने किस तरह से आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हो? देखिए लोग कह रहे हैं तो कुछ तो उनको लगता होगा जो कह रहे हैं, तो आई विल नॉट से कि कुछ नहीं होता है. बट आप देखिएगा IIT की रिपोर्ट आई थी. हाँ, IIT की रिपोर्ट ने बहुत क्लियरली दे टू 5 साल उन्होंने रिसर्च करके बताया कि कोल इज़ नॉट द मेजर रीज़न ऑफ पोल्यूशन. आप कोई भी गंदगी काली देखोगे तो हर चीज़ धूल काली होती है, उसमें तो कोल का कॉन्ट्रीब्यूटर कितना है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट डिबेट. हम सारी प्रिकॉशंस लेते हैं. देखिए जैसे होता है कार्गो उतारने से लेने के लिए हमारे साथ डस्ट सेपरेशन सिस्टम होता है. इसके अंदर डस्ट सेपरेशन सिस्टम होता है, वो कार्गो पूरा संभालता है, वो सारा अंदर लेके जाता है. पहले तो खुला हुआ था, खुला भी नहीं था, हम कवर करते थे टारपोलिन से. अब तो शेड बन जाएगा. तो वो जो 5% या 4% की भी पॉसिबिलिटी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. कोरोना जब हुआ था तब डस्ट पोल्यूशन कैसे मेजर करते हैं? हम PM10 और PM2.5 में मेजर करते हैं. तो जब कोरोना हुआ था 2019 में 19-20 में इस अपने एरिया की रीडिंग जो थी वो करीब 40 थी. हाँ हमारे धनंजय अबाउट 40 और PM10 की रीडिंग अबाउट 60-70 थी. 65 रफली ये रीडिंग थी. और ये रीडिंग लाइव कैप्चर होती है, लाइव पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाती है. और चिकालिम पे एक बोर्ड होगा, वहाँ हमारी रीडिंग भी जाती है. MPT के 2 स्टेशन हैं, उनकी भी लिए लाइव रीडिंग जाती है सब जगह.
जब कोरोना हुआ तो ये रीडिंग सब कुछ बंद हो गया, गाड़ियाँ बंद हो गई, मार्केट बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया और ये रीडिंग बहुत कम हो गई। सबने देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा कि कोरोना में कुछ ना हो पॉल्यूशन ख़त्म हो गया, ये तो बात सब मानेंगे। बट सिर्फ पोर्ट था जो पूरी कैपेसिटी पे चल रहा था, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज है, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए था। ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए हमारे स्टील प्लांट ने स्टील बनाने की जगह ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया था, तो उसके लिए कोयला तो चाहिए था। आप लोगों को सब सामान, बिजली कहाँ से आती घरों में, बिकॉज एसेंशियल सर्विस था। हम लोग रोज़ पोर्ट में आते थे कोरोना लॉकडाउन में भी कि सबको सामान पहुँचता रहे, और आप देखिए पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर वापस रीडिंग बढ़ना शुरू हो गई, बट पोर्ट वही काम कर रहा था जो लॉकडाउन से पहले कर रहा था, सेम कैपेसिटी, ड्यूरिंग लॉकडाउन सेम कैपेसिटी, आफ्टर लॉकडाउन सेम कैपेसिटी। तो आप, दिस इज़ प्रैक्टिकल थिंग। ये रिपोर्ट बोलेंगे आपने बनाई मैंने बताई अलग बात है, बट ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, सबने महसूस किया है। लॉकडाउन बहुत ख़राब था, बट आपने एक चीज़ देखी, लॉकडाउन में पॉल्यूशन नहीं था कहीं पर भी, बट कोल वॉज वर्किंग द वे इट वॉज वर्किंग, बिकॉज वी वर ऑलवेज टेकिंग प्रिकॉशंस। आई एम नॉट सेइंग कोल पॉल्यूट नहीं करता है, एवरीथिंग, गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी में भी पॉल्यूशन होता है, उसका हम पीयूसी कराते हैं, उसको लेवल लिमिट से नीचे रखते हैं तो अलाउड होता है। तो आप कोई भी काम करते हैं उसमें दिक्कत होती है और उसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो हमने कोरोना टाइम में भी सेम प्रिकॉशंस लेते थे, अभी हम एनहांस प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और कि जो थोड़ा बहुत और भी होगा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ, वी टेक मोर प्रिकॉशंस। इसीलिए आप देखिए इस एरिया में कहीं पे भी इतना बड़ा कोल के लिए शेड नहीं होगा, विच वी आर मेकिंग। सर ये जो आपने शेड बनाया है वो स्टॉक रखने के लिए बनाया है, मतलब ये पूरा कोल एक जगह पे रखने के लिए बनाया है, लेकिन जब कोल बोट से खाली होता है तब आपका प्रिकॉशन क्या है, मतलब उस वक्त जो पोल्यूशन नहीं होना चाहिए इसके लिए आपका प्रिकॉशन क्या है? ठीक, अभी आप देखिए आज एक सुबह जहाज गया यहाँ से जो कि करीब 80,000 टन लेके आया था, तो यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा था। आपको कहीं भी कोल दिख रहा है? आप बोलोगे हमने दोपहर में साफ़ कर दिया होगा। आज दिन में 11 साढ़े 11 बजे हमारे टनल साहब की विज़िट थी, राज्यसभा के MP जी, वो हमको पता ही नहीं था आ रहे हैं, तो दैट वाज सरप्राइज विजिट। ही ऑल्सो केम, ही ऑल्सो सॉ द सेम थिंग। तो आप देखिए आपको कहीं भी कोल नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। वही मैं बताया, जो हमारी क्रेन्स है ना, ये जब हम लोड करते हैं तो ग्रैब जाता है, ये ग्रैब को उठाता है, ये पूरा बंद हो जाता है, उसका ग्रैब लेके आके वो जो बड़ा सा हॉपर देखा जहाँ भी ग्रैब रखा हुआ है उसके अंदर वो हल्के से खोलता है। जब वो खोलता है तब भी सारा फॉग सिस्टम चालू हो जाता है उसके अंदर। तो जो फॉग सिस्टम होता है एक पूरी परत बना लेता है कि कोल्ड पार्टिकल्स उड़े ना, वो जाता है, वो फिर इस कन्वेयर में चला जाता है, वहाँ से नीचे जाता है कन्वेयर में जाता है। कोई गाड़ी है और वो नहीं होगा, देखेंगे कोई ट्रक में नहीं लोड होता, कुछ नहीं लोड होता है, वो इस कन्वेयर में जाता है और सीधे यार्ड में चला जाता है जो कि कवर्ड में रखा हुआ है, वहीं से चला जाता है। आप लोगों ने बहुत बार आर्टिकल्स देखे होंगे न्यूज़ में कि कोई भी न्यूज़ आती है MPT के बारे में तो एक फ़ोटो आती है उसके अंदर जिसमें दिखाया कोल की बड़ी हीप होती है और ट्रक खड़े हैं सारे आसपास। वो फ़ोटो, ऐसे कोल यहाँ 20 साल पहले हैंडल होता था। तो न्यूज़ आज की होती है, फ़ोटो 20 साल पुरानी होती है, तो विच इज़ मिसलीडिंग। आज की न्यूज़ है तो आज की फ़ोटो भी होनी चाहिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू द टीम। अलाउ नहीं करते फोटो 20 साल पुरानी फ़ोटो तो आप डालोगे तो आप 20 साल पहले प्रेस आया होगा ना इधर? हाँ, नहीं, वी हैव नॉट स्टॉप्ड एनीवन टू कम। आप जी अब आए ना, हमने तो देखिए आपको तभी मना नहीं किया था। हाउ मेनी इयर्स इन द फ्यूचर द डोम विल बी यूजफुल, कि ऐसा नहीं कि उसकी कैपेसिटी एनहांस करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कितने सालों का रिक्वायरमेंट ध्यान में रखा गया है टू डिजाइन द साइज? इसकी ये तो बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग बनाई है, 25-30 साल आराम से कोई भी बिल्डिंग चलती है, इसकी तो लाइफ इज अराउंड दैट टाइम। नो कैपेसिटी उसकी मैं बोला। हाँ, कैपेसिटी डोम की कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई भी पोर्ट की कैपेसिटी पोर्ट के अपने ऊपर नहीं होती है। देखो आप उसमें 2 लाख टन माल रख दिया आपने, वो 2 लाख कैपेसिटी हो गई उसकी। कोई भी पोर्ट की कैपेसिटी होती है, यहाँ से आप कितना सामान ले जा घुमा सकते हैं एक प्लॉट में से। कोई भी दुकान में आप कितना सामान घुमा लेते हैं वो आपका कैपेसिटी होती है। तो वो आपकी यहाँ पे जितनी भी कैपेसिटी होती है, जैसे इस पोर्ट ने अराउंड 2015 में 10 मिलियन टन कार्गो ऑलरेडी किया था, आज हम 8 ही कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड, ये डोम बनने के बाद में वी हैव बीन गिवन EC फॉर एनहांसिंग द कैपेसिटी, हाँ, सो दैट कैपेसिटी कैन बिकम 8-9 मिलियन फॉर कोल। अभी 5.5 कर ही रहे हैं, हाँ, तो उससे वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 5.5 की जगह 9 पहुँच जाएगा वो, तो 4 में। और ये पोर्ट ऑलरेडी 9 से ऊपर कर चुका है, 2015 में 9 मिलियन आई थिंक किया है, एंड द पोल्यूशन लेवल्स आर नॉट दैट अलार्मिंग। इसकी क्षमता कितने है? की डिमांड बढ़ रही है काफी। नहीं, ये जो कोल है ना, अगेन मैं बताता हूँ, ये कोल ना, ये थर्मल कोल नहीं है। थर्मल कोल होता है ना जिसमें आपने देखा होगा धुआं लगता है, आपने लपटें देखी होंगी, बहुत दिन पड़ा रहता है, कहीं पे धुआं लगता है,
ये कोल वो नहीं है, ये कोल प्रोसेस्ड कोल है, ये स्टील बनाने के काम में आता है। ये वो पावर प्लांट वाला कोल नहीं है। इसमें अगर 100 टन कोल आ रहा है तो 10 टन या 5-10 टन से भी कम कोल वो होता है जो पावर प्लांट के लिए होता है, जो स्टील प्लांट को पावर प्लांट के लिए चाहिए होता है। तो ये कोल एज इट इज़ प्रोसेस्ड है, इसमें वैसे ही स्पॉन्टेनियस कम्बशन नहीं होता, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो दैट वे दिस कोल इज नॉट हार्मफुल। एंड हमने तो और भी ज़्यादा किया है। व्हाट वी हैव डन विद गोवा पोल्यूशन बोर्ड के साथ में, हमने एक हेल्थ स्टडी प्रपोज की, हाँ, जिसमें गवर्नमेंट की एजेंसी आगे करेगी। वी आर फंडिंग द एंटायर कॉस्ट फॉर दैट, कि आप पूरे सैंपल लीजिए पूरे इस एरिया के लोगों के, क्योंकि कोल की अलग मशीन्स होती हैं जो डिटेक्ट करती है आपके एक्सरे से कि ये प्रॉब्लम आपको, जैसे मुझे खांसी है, इनको भी खांसी है, कोल की वजह से नहीं है। तो वी हैव स्पॉन्सर्ड दैट स्टडी की गवर्नमेंट एजेंसी कैन कम एंड डू अ हेल्थ स्टडी फॉर पीपल। वी ऑल्सो डोंट वांट एनीवन टू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन दिस एरिया। उनको छोड़िए, हम लोग सब ये टीम है जो है यहाँ पे 15 साल 20 साल से ये कोर्स चल रहा है। यहाँ एक भी आदमी, वी हैव आवर मेडिकल चेक्स एवरी ईयर, एक भी आदमी को आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ जो यहाँ काम करा, जो इसके अंदर ही रहता है। ये तो बिल्कुल हार्ट ऑफ द जगह है ना। वी हैव रिकॉर्ड्स फ्रॉम लास्ट एवरी ईयर हम पूरे स्टाफ का मेडिकल चेकअप करवाते हैं। किसी का कोई भी मेडिकल इशू नहीं नोट किया अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर। So, उसके बाद भी वी हैव गॉन अहेड कि गेट लेट अ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसी कम एंड डू अ प्रॉपर हेल्थ चेकअप ऑफ द एंटायर टीम एज पर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स टू फाइंड आउट इज दिस अ प्रॉब्लम टू एनीवन और नॉट। वो भी जस्ट इसलिए कि जस्ट वी केयर, वी वांट टू शो वी केयर। बाकी तो सब बातें जैसे मैं आपको कोविड में बताया कि दैट इज द एक्चुअल फैक्ट व्हिच हैपेंड। We have already given even the money to GSPCB. We have given the consent to them. Now it's a government to government body. So they will be starting somewhere very. They should be starting somewhere very soon. सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपने हर जगह डिफेंड किया है कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता करके, लेकिन फिर भी वास्को वाले लोग बोल रहे हैं कि वास्को में, मारमुगांव में बहुत पोल्यूशन होता है, और उनके पास वीडियो प्रूफ भी रहते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो घूमते हैं, उनके फर्श पे ऐसे हाथ लगाए तो कोल दिखता है। तो आप उसको कैसे डिफेंड करोगे? नहीं, मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम नोबडी टू डिफेंड एनीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ दे आर सेइंग समथिंग दे मस्ट हैव सम रीजन टू से दैट थिंग। बट जो IIT स्टडी ने क्या बताया कि जो आप धूल लगाते हो, धूल में कोल कितना, वो एक साइंटिफिक स्टडी बता सकती है ना। लेकिन सर गोवा की मिट्टी तो लाल होती है। गोवा की मिट्टी तो लाल सड़क पे होती भी है। आप जाएंगे, आप कभी भी आप अपने घर में जो कोर्ट के आसपास नहीं है वहाँ पर भी हाथ आएंगे तो आपका हाथ काला ही होने वाला है। सर मिट्टी काली होती है। कोल में कितने लोग हैंडलिंग करने वाले कौन है आपके अलावा? हम यहाँ पर करते हैं एंड अडानी करता है कोल, एंड यहाँ मूरिन डॉल्फिन पे वेदांता करता है। ही पळयात तुम्ही माझ्या फाटल्यान जी बोट येता, ही बोट अशी हांगा येवन आता ह्या पोर्टाक लागतली, आनीक ही जी बोट आसा हितून मोठे मोठे कंटेनर आमकां दिश्टी पडटात, जाल्यार ह्या बोटीन आसा कितें तेवूय आमी तुमचे मुखार हाडटले। आनीक हितून कोळसो कसो तरेन गोंयान जो मारमुगांव पोर्टाचेर येता, ज्या बोटी वयल्यान कसो तरेन तो मारमुगांव पोर्टाचेर हांगा येवन जे गोंयचे जमनीचेर हांगा पावता, तेवूय आमी तुमचे मुखार हाडटले। आमी JSWची सायट तुमकां दाखयली, आनी जितले पर्यंत आमकां परमिशन आशिल्लें भितर वचपाक तितले पर्यंत आमी तुमकां दाखयलें JSWचें कशें कितें आसा तें। आनीक आतां आमी पावलेले आसा अदानी जो एक फेमस असो गोंयांत जाल्लो आसा, कित्याक अदानी हें नांव आयकतनाच लोकांक कोळसो असो याद येता। आनीक हांगा तुमी पळोवंक शकतात तेजे कंपाउंडाच्या भितर आमी पावलेले आसात, आनीक तुमी पळोवंक शकतात सगळी जमीन सुद्दां हांगा सिमेंट जें आसा तें सुद्दां सगळें काळें जाल्लें आसा। आनी म्हाज्या फाटल्यान झाडां दिसतात ती सुद्दां पळोवंक शकतात कशें काळें जाल्लें आसा तें। तर पळोवया भितर अडानीच्या एरियेन, अडानीच्या कॅम्पसान कितें परिस्थिती आसा ती पळोवया। जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की अडानीच्या कॅम्पसान आमी पावलेले आसात, आनीक हे जे सगळे हांगा कशें कितें जाता तें तुमचे मुखार आमी घेवन येवपाचो प्रयत्न करतात। पूण हांगा जे सेक्युरिटी आसात त्या सेक्युरिटीन आमकां हांगाच हाडयल्ले आसा, आनीक भितर वचपाक ते दिनात की म्हणटात ही ऑपरेशनल एरिया। पूण तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात कितलो डस्ट हांगा जाता, आनीक त्या डस्टाक लागून ते कशें कितें हांगा उदक मारतात तेवूय तुमी पळोवंक शकतात। आनीक ही ऑपरेशनल एरिया आसले कारणान ते आमकां हाडूंक दिनात, पूण आमच्यांनी जाता तसो प्रयत्न करून आमी तुमचे मुखार विज्युअल
विज्युअल्स घेवन येतले आनी हांगा कशें तेंचे ऑपरेशनल एरिया आसा तेजे आमी विज्युअल्स तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. तेंचे कंट्रोल रुमान आमी थोड्याच वेळान वचपाचे आसात आनी त्या कंट्रोल रुमांतल्यान आमकां जे कितें विज्युअल्स येतात ते आमी तुमकां दाखयतले. जशें की तुमकां आमी ह्या एपिसोडान फूल दाखोवपाचो प्रयत्न केलो की मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणजे MPA, जेका गोंयचो कोल हब म्हणटात, ज्या जाग्यार गोंयान कोळसो येता, भायल्यान कोळसो येता आनीक खुबशे वास्कोकारांचो असो हें आसा, भंय आसा की हांगासल्यान कोळसो तेंच्या घरान पावता. आमी खुबशे अशे व्हिडियोज पळयले, खुबशे अशे कितें कितें पळयले ज्या जाग्यार कोळसो बसलेलो आसता वास्को आनीक ते खूब पळोवपाक सुद्दां हॉरिबल दिसता. आनी आमी हांगासले अधिकाऱ्यांक मेळपाचो प्रयत्न केलो आनी काही अधिकारी आमकां मेळ्ळे, तेणी आपले व्ह्यूज आमकां आमचे मेरेन पावयले आनीक त्याच बरोबर आमी हांगासले जे प्लांट्स आसात जिंदालाचो तसोच अडानीचो हे दोनूय प्लांट्स आमी विजीट केले आनीक तुमचे मेरेन आमी जाता तितको प्रयत्न केलो की कितले भितर वचून आमी तुमकां दाखोवंक शकतात, पूण आमच्यांनी जाता तशें आमी प्रयत्न केलो. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे बरोबर हांव गौरेश गांवकर, MPA वास्कोसून.